Let us continue with the numerical that we were solving in the last class. We had completed this numerical, example 15.1 from Bhavi Katti. There are two methods that we generally use, or that we are generally using in this particular part of your syllabus, that is work energy principle, and another one is conservation of energy principle. Work energy principle was already used and we had already calculated these two values required for this numerical. Now, we had already used energy conservation principle 2 to solve for this value. And it was explained that whenever you use energy conservation principle, you have to create a datum line for gravitational potential energy. And any mass that goes above the datum line will be increasing its gravitational potential energy, and any mass that goes down the datum line will be decreasing the potential energy. As far as kinetic energy goes, the datum line has nothing to do with it. So whether it is climbing upwards, whether it is climbing downwards, the only thing that counts towards calculation of kinetic energy is the velocity. And there is not even a concept of negative velocity here, because kinetic energy is half of mv square. So whether velocity is negative or positive won't matter, because the square of velocity will always be positive. So one thing that you have to remember is that kinetic energy is never negative. It is always positive. Potential energy can be positive or negative depending on the position of the mass above or below the datum line that you have considered. And datum line is considered as the zero potential energy of gravitational line. Okay, so using the energy method, we had already calculated the distance at which this velocity change occurs. Let us read the question once again. Two bodies, 300 Newton, 450 Newton. They are simply hung and there is no external force that you are applying. Only the gravitational force is automatically getting applied in this. How much distance the blocks will move in increasing the velocity from 2 to 4 meter per second. So by default, whenever you see two velocities increasing, so you have to take the first one as the initial velocity and this one as the final velocity. So what distance would the masses have moved in increasing this much velocity? So using the conservation of energy principle, we said that we have a general formula: potential energy gravitational at 1 plus kinetic energy at position 1 plus potential energy due to spring, if any, at 1. All these quantity will be conserved and would be equal to the sum of potential energy gravitational at position 2, kinetic energy at position 2, and potential energy due to spring, if any, at position 2. Now, from the figure, we can directly see that there is no spring. So in this equation, these two quantities are already eliminated. So all you have to do is equate these two quantities. And using this, we had calculated that the distance moved in increasing the velocity is 3.058. So we already got it. Now the second part of the problem is a little bit tricky. See, using the work energy principle, we have already calculated both of these quantities. But how to calculate the value of tension using the conservation of energy principle? That is what we want to learn now. Okay. So what we will do is, since tension is an internal force of the system which is getting applied on the thread, so what we have to do is, instead of considering the whole system for application of conservation of energy, we will once again take only this much part as the system. So it's your choice. Either you take the 300 Newton mass or the 450 Newton mass. It's your choice. Both of them will give you the same answer. So let us take the 300 Newton mass, for instance,
and let us try to apply the conservation of energy on the 300 Newton mass. Now, see, this is very important because here you are going to learn some new stuff on how to apply conservation of energy principle when there is an external force acting on the system. That is what you have to learn now. Okay. Till now, this principle was applied. This equation was applicable when no external work was being done on the system and no loss was occurring in the system. Loss occurs in the system if there is friction, and additional work is input inside the system when some external force is acting on the system. So this conservation principle or this equation is valid only if the above mentioned two statements are null and void. यानी कि सिस्टम में ना तो कोई वर्क इनपुट आ रहा है और ना ही कोई फ्रिक्शनल लॉस हो रही है, तो ही ये प्रिंसिपल वैलिड है. तो अब अगला सवाल ये आता है कि भाई अगर मेरे सिस्टम में कोई एक्सटर्नल वर्क हो रहा है या फिर अगर मेरा फ्रिक्शनल लॉस हो रहा है, तो क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगा ही नहीं सकता क्या? भाई बचपन से तो आप सीखते आ रहे हो, स्कूल टाइम से यही सीखते आ रहे हो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अ यूनिवर्सल लॉ, इट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर इन द होल यूनिवर्स. यही है बात. तो फिर अब आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई मैकेनिक्स की प्रॉब्लम में कहीं पर फ्रिक्शन हो रहा है तो कंजर्वेशन मत लगाओ? ऐसा हो ही नहीं सकता. तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था, द कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज स्टिल यूनिवर्सल, एंड वेदर और नॉट some work input is taking place or some friction is occurring, the principle can still be applied, but this formula will not be valid. अब देखो इस फॉर्मूले को कैसे मैं मॉडिफाई करता हूं. लेट अस एज्यूम, या फिर चलो लेट अस एज्यूम नहीं, इट इज गिवन, गिवन एक्सटर्नल वर्क इनपुट is equal to W. There is some external work input due to some external force, let us say W, and frictional energy loss is equal to Wf. So there is some energy or some work which is lost in friction. Now these, both of these things are occurring simultaneously, and now we want to see how the conservation of energy formula changes in the presence of these. If these two are zero, then the conservation of energy principle is as given in this above equation. But if these two things are not zero, if both of them are present or any one of them is present, then how do you change? See, I will rewrite the above expression as energy initial equal to energy final. Now you apply your logic. See, energy initial कितना हो गया अभी आपका? PEG1 plus KE1 plus PS1. ये एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन हो गया, और एनर्जी एट फाइनल पोजीशन में किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? PEG2 plus KE2 plus PES2. इसको मैं एनर्जी 2 बोल रहा हूं या फिर एनर्जी फाइनल बोल रहा हूं. अब आप अपना लॉजिक यूज करके मेरे को ये बताओ कि अगर मैं कोई एक्सटर्नल वर्क सिस्टम में डालता हूं तो ये W कौन से साइड में प्लस होगी या माइनस होगी? अप्लाई योर लॉजिक एंड टेल मी. सर ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगी। वेरी गुड. इफ एन एडिशनल वर्क इज पुट इनसाइड द सिस्टम, तो वो क्या करेगी? आपके सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाएगी. तो इसका मतलब है इनिशियली जितनी एनर्जी थी उससे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी फाइनल में. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, whenever you see an additional work input in the system, in the standard equation of conservation you add this W to the left hand side. अब उसी तरीके से मेरे को आप वापस से लॉजिक यूज करके ये बताओ, इफ सम फ्रिक्शनल लॉस इज ऑकरिंग बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट को घिसाड़ते हुए आप फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट तक ले गए, तो उसमें जो फ्रिक्शनल लॉस हो रहा है 1 से 2 के बीच में हो रहा है. तो ये जो वर्क लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है, इसको मैं कहां पे प्लस करूं या कहां पे माइनस करूं, ये भी बताओ.
थिंक अबाउट इट। भाई पहले मेरे पास 4 जूल एनर्जी थी, 2 जूल एनर्जी फ्रिक्शन में लॉस हो गई, तो फाइनल एनर्जी कितनी होगी? 2। 2 जूल। कैसे निकाला? 4 - 2 किया कि नहीं किया? यस सर। अब बताओ। सर राइट हैंड साइड में, नो। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करेंगे। यस। आपकी जो इनिशियल एनर्जी है उसमें से फ्रिक्शन एनर्जी खा रहा है और फाइनल स्टेट में कम मिलेगी। तो इससे साफ साफ लॉजिक ये प्रदर्शित करता है कि लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि इनिशियल एनर्जी में से आपकी वर्क लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन को माइनस करोगे तो फाइनल स्टेट की एनर्जी मिलेगी। सो once again this work loss due to friction has to be deducted from the left hand side, and now this becomes your conservation of energy equation when extra work is produced in the system or put in the system and losses are taken out of the system. तो अब ये आपको समझ में आ गया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगाने में अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले अगर ये कोई एक्सटर्नल लॉस या एक्सटर्नल इनपुट नहीं है तब तो ये हो गई, और अगर एक्सटर्नल लॉस और एक्सटर्नल इनपुट है तब तो ये हो गई। एक और लिख देता हूं, ये देखो, ई आई इक्वल टू ई एफ। ये कौन सा केस है? नो लॉस, नो इनपुट। उस वाले केस में तो ये इक्वेशन हो गई, विथ लॉस एंड इनपुट बोथ ये हो गई। और अगर लॉस नहीं है सिर्फ इनपुट है तो ई आई प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ। और अगर इनपुट नहीं है सिर्फ लॉस है तो ई आई माइनस डब्ल्यू एफ इक्वल टू ई एफ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया सारा का सारा मामला? यस सर। ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर सकते हैं जो अपने सामने है। अब ये बोलता है, देखो इस क्वेश्चन को वापस से पढ़ो। दिस इज सेइंग टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी, एंड नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी आर कंसिडरिंग ओनली दिस मच पार्ट एज द सिस्टम, क्योंकि अपन ने पूरा का पूरा एक सिस्टम बना करके तो कंजर्वेशन लगा लिया, उससे एक ही इक्वेशन बनती है और उस एक इक्वेशन से आपको एस की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन उसके अंदर टेंशन कहीं अपेयर हो ही नहीं रही थी, तो उस वाले इक्वेशन से टेंशन निकल ही नहीं सकती। तो अब क्या करोगे? यू विल रीअप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑन द सिंगल मास एंड द थ्रेड विच इज पुलिंग इट अपवर्ड्स। तो अब की बार ये अधूरा चीज आपने जब सिस्टम लिया तो इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अपियर हो गई। कैसे हुई ये मैं बताता हूं। लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। 300 न्यूटन की आपकी वेट है और ये थ्रेड इसको ऊपर को टी फोर्स से खींच रही है। पहले जब आप इसको यों ले रहे थे, पूरा सिस्टम ले रहे थे, तो टी ऊपर और टी नीचे, तो टी का वर्क अगर आप कैलकुलेट करते भी तो एक तो ऊपर और एक नीचे एक्स डिस्टेंस से मूव हुई, दोनों आपस में कैंसिल हो जाती, तो इसीलिए टी उस वाले इक्वेशन में अपेयर नहीं होती। लेकिन अब जब आप सिर्फ इतना सा सिस्टम ले रहे हो, अब चूंकि फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है तो नीचे को mg भी लगेगा। अब इसमें और कोई फोर्स नहीं है, देर इज नो फ्रिक्शन। ठीक है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब इसके ऊपर जब मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगाऊंगा तो मैं वापस से देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल में मैंने आपको पहले ही कह दिया था डेटम लाइन बनाना कंपलसरी है हर बार। नाउ एट दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल इक्वल टू जीरो। अब फाइनल स्टेट में ये कहां पहुंची है? 300 न्यूटन वाली। फाइनल स्टेट में 300 न्यूटन वाली ऊपर पहुंच गई। कितनी ऊपर पहुंची? लेटस से x डिस्टेंस से ऊपर पहुंची, और x कितना ऊपर गया ये अपन को ऑलरेडी पता है। वी ऑलरेडी नो दिस इज 3.058 मीटर्स, इतना ऊपर गई है। इनिशियल स्टेट में वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्टेट में वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर 4। पर सेकेंड। ठीक है, ये चीजें अपन को पता है। अब अपन को क्या करना है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। पहले तो बताओ इनिशियल एनर्जी कितनी है? इनिशियल एनर्जी आपको पता है, इट इज पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग इनिशियल, ये होती है इनिशियल एनर्जी। अब इसमें पहले ही पता है स्प्रिंग तो है नहीं, इसको हटा दो।
अब जल्दी बताओ इनिशियल एनर्जी कितनी है, फॉर्मूला बता दो सिर्फ इस सिस्टम के लिए। पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट कितना है? हाफ एम वी वन स्क्वायर। नो, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी जीरो। जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी बताओ। हाफ एम वी वन हाफ। स्क्वायर। सही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अपनी ई आई हो गई कुल मिलाकर के हाफ ऑफ 300/g/4। ठीक है, अब एक काम करते हैं, फाइनल पोजीशन की एनर्जी भी निकाल लेते हैं। एनर्जी एट द फाइनल लोकेशन विच इज अगेन गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल एट फाइनल लोकेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल लोकेशन प्लस potential energy due to spring at final location. And once again we know that spring is not there, so remove it. अब इसकी वैल्यू बताओ। देखो भाई, फाइनल लोकेशन पे डेटम लाइन आपकी ये रही, डेटम लाइन से कितना ऊपर गया है ये, एक्स। इसको थोड़ा प्रॉपरली अगर ड्रॉ करो तो ये ऐसे आएगा। डेटम लाइन से मास ऊपर गया है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव कैलकुलेट होगी। कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी? mgh। अगर mgx तो क्या मैं इसको सीधे सीधे 300x लिख दूं क्या? प्लस 300x, mg तो हो गया 300 और h हो गया x, तो mgh द पॉजिटिव इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल लोकेशन इज 300x। ठीक है क्या? अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दो। हाफ एम, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 4 स्क्वायर। हो गया। सो आई विल सिंपली से दैट द फाइनल एनर्जी इज 300। अच्छा, x की वैल्यू अब मुझे पता है तो मैं इसको अब वेरिएबल के फॉर्म में रखना ही नहीं चाहता। आई विल सिंपली पुट 3.058 प्लस हाफ ऑफ 300/g/16। ठीक है, अब देखो इनिशियल एनर्जी तो इतनी है, फाइनल एनर्जी इतनी है, तो क्या मैं कंजर्वेशन प्रिंसिपल के हिसाब से ये लिख सकता हूं कि यहाँ पे ई आई इज इक्वल टू ई एफ? कैन आई राइट दिस और हैज देयर समथिंग एल्स दैट शुड बी इंक्लूडेड हियर? अब की बार देखो, आपका 300 न्यूटन फोर्स जो है उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स है टेंशन। पहले जब पूरा सिस्टम ले रहे थे तो टेंशन टेंशन कैंसिल हो रही थी, उसमें नहीं आ रहा था, अब इसमें आ रही है क्योंकि आपने अकेला एक मास लिया है। आप ये क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो कि भाई इस पे एक mg लग रही है, क्या ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है क्या? भाई mg कौन लगा रहा है? धरती लगा रही है इसके ऊपर, तो है तो एक एक्सटर्नल फैक्टर ना। आपने सिर्फ इस मास को सिस्टम माना है, मास और धागे को सिस्टम माना है, तो उस पे जो mg लग रहा है वो भी एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए। बट द आंसर इज नो, क्योंकि mg के कारण जो वर्क डन हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन में काउंट कर लिया गया है। भाई mg क्या है? फोर्स है, और इंटू एक्स क्या है? डिस्टेंस है, तो mgh तो ऑलरेडी ले लिया ना आपने पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन में। तो अब ये चीज ध्यान रखना, एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करते टाइम कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन इनपुट की तरह नहीं ट्रीट करना है। So it is easier for you guys to remember that gravitational force acting on any body, whether taken individually or whether taken as a part of the system, is never treated as an agency that can create work inside the system. यानी कि इसको फोर्स एक तरह से मान लो, mg जो फोर्स है एनर्जी कंजर्वेशन लगाते टाइम कंसिडर करना ही नहीं है, यानी इसको बिल्कुल पिक्चर से हटा दो। और इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्यों? क्योंकि mg के कारण जो वर्क डन है वो ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन के नाम से कंजर्वेशन प्रिंसिपल में स्टोर्ड है। दिस इज ऑलरेडी हियर, pe1 pe2 ऑफ ग्रेविटेशनल, ये ऑलरेडी कंसिडर्ड है, तो अब इसका वर्क डन कैलकुलेट नहीं किया जाएगा वापस से। ठीक है, अब कौन सी फोर्स रह गई है? टेंशन।
तो टेंशन कोई ऐसी यूनिवर्सल फोर्स तो है नहीं जो हर जगह प्रेजेंट रहेगी। टेंशन आपके इस प्रॉब्लम में है, किसी दूसरे प्रॉब्लम में नहीं होगी। सो टेंशन इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच डज सम वर्क इनसाइड द सिस्टम। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स? क्या पता लगा भाई इस टेंशन के कारण आपकी बॉडी कितनी ऊपर गई, एक्स डिस्टेंस से ऊपर गई थी। सो टेल मी व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन? Tx. It is simply T into, and X we already know is 3.058. So I will write 3.058 into T is the work done by the tension force. अब इस वर्क डन को मैं इस वाली इक्वेशन में कैसे अप्लाई करूं ये बताओ। अब इसको पुट करना है मेरे को यहां पे, ये इक्वेशन अभी सही नहीं है। ई आई जो है वो ई एफ के बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क इनपुट किया है और वो एक्सटर्नल फोर्स टेंशन थी। तो अब इस इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई करूं मैं ताकि ये वैलिड हो जाए? EI plus W is equal to EF. ये एज सिंपल एज दैट, ये अभी आपने शुरू में बता ही दिया था। अब ये इक्वेशन वैलिड हो गई। तो अब आप अपनी पुरानी ई आई और ई एफ की वैल्यूज लेके आ जाओ। ये तो है ई एफ, ये है ई आई, इन दोनों को लेकर के इस इक्वेशन में पुट करो और W की जगह पर ये एक्सप्रेशन पुट करो। So in the whole equation, the only single unknown is your tension. And now you get the value of T from this equation. This is how you apply conservation of energy principle when there is external work done or friction is deducted from the system. ठीक है? तो अब इस प्रॉब्लम को आपने समझ लिया है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अपन ने इस प्रॉब्लम को, हालांकि इन्होंने कहा था वर्क एनर्जी से करो, अपन ने वर्क एनर्जी और कंजर्वेशन दोनों से करके देख लिया। एंड नाउ प्रॉब्लम नंबर 6, डू योरसेल्फ एंड डू वन मोर थिंग, you have to apply both the principles so that you test whether you get the same answer or not. अब इसी से रिलेटेड अगला वाला प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मैं अभी करा देता हूं। उसका मैंने सॉल्यूशन भी यहां पे लगा दिया, क्योंकि ये एक लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेसी इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, बट वी विल डिस्कस इट हियर। इस वाले प्रॉब्लम को दोनों मेथड से करके देखें आप, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बता देता हूं। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड नोट इट डाउन ऑल्सो, ठीक है, ताकि बार बार आपको वीडियो लेक्चर ना देखना पड़े। कोई चीज अगर मैं आपको कहूं कि इसको नोट कर लो, तो यू टेक अ पीस ऑफ पेपर और योर नोटबुक एंड नोट इट डाउन एंड कीप इट सेव्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। अपन ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के नेचर के बारे में काफी बातें कर ली, ठीक है। अपन ने काफी बातें कर ली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में, लेकिन अपन ने अभी तक ये नहीं देखा कि स्प्रिंग एनर्जी का क्या क्या नेचर होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा स्प्रिंग एनर्जी के बारे में आइडिया देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ठीक है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। फोर्स exerted by the spring is always equal to kx. Force of spring, sorry, फोर्स ऑफ स्प्रिंग तो kx हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर हो गई, ठीक है। अब इस डिस्कशन पे थोड़ा सा ध्यान दें। एक स्प्रिंग है आपके पास जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, आपने इसको पकड़ करके x डिस्टेंस से खींचा। व्हाट इज द वर्क डन बाय यू? टेल मी, what is the work done by you in stretching the spring from this point to this point? हाफ के एक्स स्क्वायर। Yes. अब ये ध्यान से देखते जाओ, वर्क डन
by u is equal to half kx square. Now the next question is, what is the work done by spring? भाई स्प्रिंग इसको पीछे भी तो खींच रही है ना, आप उसको आगे खींच रहे हो तो स्प्रिंग पीछे को भी खींच रही है। और अगर मैं ये पूछूं कि स्प्रिंग पीछे को कितनी फोर्स से खींच रही है, तो उसका आंसर है कि एक्स। तो अब देखो हुआ क्या है, जिस पॉइंट को पकड़ के आप आगे खींच रहे हो, स्प्रिंग उस पे पीछे को फोर्स लगा रही है के एक्स के बराबर की। और आप उसको ले जा रहे हो एक्स डिस्टेंस से आगे। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि स्प्रिंग ने कितना वर्क किया। एनीबडी आंसर बोल दो, गलत हो गया तो मैं सही कर दूंगा। हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर है, लेकिन अब की बार माइनस में। देखो ये चीज स्प्रिंग के बारे में समझना बहुत जरूरी है। वर्क डन बाय यू टू स्ट्रेच और कंप्रेस अ स्प्रिंग इज ऑलवेज के हाफ के स्क्वायर। वर्क डन बाय स्प्रिंग इन एक्सटेंशन और कंप्रेशन बोथ is again half of kx square. But the only thing is, whenever you talk about the work done by spring, you have to put a minus sign. And whenever you ask कि भाई एक स्प्रिंग को खींचने में या दबाने में आपने कितना वर्क किया, तो वो प्लस के एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। नाउ अनदर क्वेश्चन, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग कितनी है? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस? प्लस। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। अब ये जो तीन स्टेटमेंट मैंने लिखे हुए हैं, इसको अच्छी तरह से अपने मन में रख लो या नोट करके रख लो, क्योंकि ये आपकी अलग अलग सिचुएशन में आपको बताएगी कि कहां पर इसमें माइनस लगाना है और कहां प्लस लगाना है। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग क्या चीज होती है? दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल एज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग। This is the only thing which represents potential energy due to spring. कौन सी? Strain energy stored in spring. फिर ये जो दो चीजें हैं, वर्क डन बाय यू एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग, ये कब काम में आती है? ये दोनों तो आपकी काम में आएगी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में यूज करने के लिए। और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग विच इज नथिंग बट द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, और वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। चाहे आप उसको दबा रहे हो, चाहे आप उसको खींच रहे हो, चाहे आप स्प्रिंग के पर्सपेक्टिव से देखो, चाहे आदमी के पर्सपेक्टिव से देखो, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कितनी होती है स्प्रिंग में, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी है, दैट इज ऑलवेज प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना, इसमें कभी माइनस नहीं आएगा। यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाते टाइम स्प्रिंग की जो एनर्जी है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट व्हेन यू अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में क्या करते हैं अपन? एक इनिशियल पॉइंट लेते हैं, उसको 1 बोलते हैं, और एक फाइनल पॉइंट लेते हैं, उसको 2 बोलते हैं। 1 से लेकर के 2 के बीच में जितनी भी फोर्सेस आपको नजर आती हैं, उन सारे फोर्सेस का वर्क डन का समेशन करो और उसको इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पोजीशन माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पोजीशन करो। ये है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है कि भाई सारे फोर्सेस का वर्क डन निकालो और उनको ऐड करो, तो उसमें यहां घपला हो जाता है कि भाई स्प्रिंग ने वर्क किया या आपने वर्क किया। तो अगर स्प्रिंग ने वर्क किया तब तो वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाती है, और अगर आपने वर्क किया है स्प्रिंग पे तब तो एनर्जी सॉरी वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाती है। ये ध्यान रखना है। अब अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा तो ये जो चीज है अब नेक्स्ट एग्जांपल में पूरी क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है? वेयर वी विल मेक यूज ऑफ, देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में तो आपको कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, मैंने बता दिया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में स्प्रिंग जहां पर भी नजर आ जाए उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के एक्स स्क्वायर ले लेना है। और ये ध्यान रख लिया
कि भाई मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहा हूं तो मेरे को प्लस माइनस का कुछ भी नहीं देखना है, ये हमेशा प्लस होगी। अभी माइनस का कॉन्सेप्ट आता कब है, जब आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा रहे हो, तभी तो ये प्लस माइनस का घपला आता है ना। सो लेट अस सी हाउ दिस कंफ्यूजन कैन बी रिजॉल्व while we solve this question। अब देखो जैसे डू योरसेल्फ वाला क्वेश्चन है, उसमें स्प्रिंग आ रही है, तो उसको सॉल्व करके देखना दोनों प्रिंसिपल से, तब आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर होगा। एंड इफ यू आर स्टक एट सम पॉइंट व्हाइल सॉल्विंग दिस, गिव मी अ कॉल, आई विल satisfy your query। लेट अस सॉल्व दिस। 3000 न्यूटन की ब्लॉक है, ये देखो ये फिगर है। ये फिगर दिख रहा है क्या आपको? कि इसका थोड़ा सा अच्छा इमेज नहीं बन पाया था, मैंने काफी कोशिश की, बट दिस इज द बेस्ट आई कुड गेट। आपको क्लियर दिख रही है क्या हो रहा है? और आई विल ड्रॉ अनदर थिंग, यहाँ यस बना सर, दिख देते हैं। जूम कर लेते हैं हम। यहाँ देख लो आप, 3000 न्यूटन की ब्लॉक है और एक स्लोप पर पड़ी हुई है जिसका एंगल है 50 डिग्रीज। एट द एंड ऑफ द स्लोप अ स्प्रिंग हैज बीन अटैच्ड। तो स्प्रिंग को यहां पर ऐसे अटैच किया हुआ है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ब्लॉक टू द अनकंप्रेस्ड स्प्रिंग इज 2 मीटर्स। यानी कि अभी जब तक स्प्रिंग को दबाया नहीं गया, ये स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं है, और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस 2 मीटर। ठीक है, अब देखें आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। स्प्रिंग की स्टिफनेस दे रखी है, देखो द मॉड्यूलस ऑफ स्प्रिंग। मॉड्यूलस का मतलब है, आप यंग्स मॉड्यूलस मत लेना, इसकी यूनिट देखो न्यूटन पर एमएम। सो बेसिकली मॉड्यूलस नाम से ये क्या दे रहा है आपको? ये आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दे रहा है, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है ये। बट यू शुड नेवर बी सेटिस्फाइड विद दिस यूनिट। आपने जैसे ही ये यूनिट देखी न्यूटन पर एमएम, इसको इमीडिएटली न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, वरना ये आपके लिए जहर बन जाएगी बाद में जाके। कहीं ना कहीं गलती से आप के की वैल्यू को 20 ले लोगे, और यहाँ पर फोर्स एसआई यूनिट में है, डिस्टेंस एसआई यूनिट में है, और के आपने नॉन एसआई ले ली, पूरी की पूरी क्वेश्चन गलत हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट जैसे ही दिखे, उसको इमीडिएटली स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने का है, कंपलसरी है ये। तो अब बताओ, इफ योर के is given as 20 Newton per millimeter, what will be the value of K in Newton per meter? ध्यान से सोच के बताना। 0.2। गलत। 20 into 10 raised to power 3। यस, ऐसा क्यों हुआ? अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। भाई इसका जब कन्वर्जन करना होता है तब आप ऐसे करते हो, 20 न्यूटन पर एमएम है। नाउ व्हाट इज 1 mm इन मीटर्स? इट इज 10⁻³ मीटर्स। तो मैं नीचे पर एमएम का मतलब है नीचे 1 mm बैठी है, तो 1 mm को मैं मीटर में रिप्लेस करूंगा, तो मैं इसको 10⁻³ मीटर लिखूंगा। अब यूनिट तो न्यूटन पर मीटर हो गई, लेकिन ये नीचे 10⁻³ आ गया। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+3। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे किया है? और वैसे भी यस सर। लॉजिक लगा करके देख लेना, अगर ये चीज याद भी नहीं रहे, ये भी अगर ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो ऐसे सोच लेना, भाई अगर मैं एक स्प्रिंग को सिर्फ 1 mm से दबाना चाहता हूं, तो मेरे को 20 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ रही है। लेकिन अगर उसी स्प्रिंग को मैं 1 मीटर से दबाना चाहूं, तो मेरे को कम लगानी पड़ेगी कि ज्यादा लगानी पड़ेगी फोर्स? ज्यादा। ज्यादा ही लगानी पड़ेगी। तो आप ये समझ लेना कि 20 का 0.02 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 mm में अगर 20 लग रही है, तो 1 मीटर में तो ज्यादा ही लगनी चाहिए ना। तो इसलिए उसको 10⁻+3 कर लेना। इससे क्या है, जल्दी आपको रिकॉल हो जाएगा कि करना क्या है। सो योर फाइनल वैल्यू ऑफ के, एज वी हैव नाउ डिसाइडेड, इज नॉट 20 बट 20,000 न्यूटन पर मीटर। अब अपन सेफ हैं, अब के जहां भी दिखेगा अपन 20,000 लेंगे, 20 नहीं लेंगे। ओके, नाउ
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन इज 0.2, ये भी ले लो. The coefficient of friction is given as 0.2. Okay, what else? Determine the maximum deformation of the spring and the maximum velocity of the block. पहले अपन इस वाले को लेते हैं, पहले वाला पार्ट आसान है. मैक्सिमम डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग. अब होगा क्या? This block is going to slide down, and while sliding down, you all know that the velocity of the block will keep on increasing. And as soon as it strikes this board where the spring is starting, it will start compressing the spring. And as soon as the spring starts its compression, there will be a force exerted by the spring on the block on the opposite side. समझ रहे हो? जैसे ही ये ब्लॉक स्प्रिंग को दबाना स्टार्ट करेगी फिसल के नीचे आके, ये स्प्रिंग उसी टाइम से ऊपर को फोर्स लगाना चालू कर देगा 300 न्यूटन वाले ब्लॉक पे. अब इसको एक और रेजिस्टेंस मिल गई 3000 न्यूटन वाले को, ये स्प्रिंग की फोर्स. लेकिन यहां से लेकर के यहां तक तो कोई फोर्स नहीं थी. जैसे ही स्प्रिंग पे टच हुआ तब से एक नई फोर्स आ गई. अब ये स्प्रिंग जैसे जैसे दबता जाएगा इसकी फोर्स बढ़ती चली जाएगी. क्यों? स्प्रिंग की फोर्स कांस्टेंट नहीं होती है. The force of a spring is given by k into x. ये x वेरिएबल है, तो जितना स्प्रिंग दबता जाता है उतनी ही उसकी फोर्स बढ़ती जाती है. तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आकर के let us say there is a distance x after which the block will be stopped. ये मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई यहां से लेकर के यहां तक आने में तो इसको कोई अवरोध नहीं था. अवरोध क्या था? फ्रिक्शन का था. लेकिन फ्रिक्शन की एक कांस्टेंट फोर्स है, तो ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे को चलती रहेगी, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी. लेकिन यहां पे आके टच होने के बाद इसको एक नई रेजिस्टेंस मिलेगी स्प्रिंग की, और ये कुछ एक्स डिस्टेंस तक स्प्रिंग को दबा पाने के बाद ब्लॉक रुक जाएगी. डू यू एग्री और दैट एग्री ऑन दिस और नॉट? Yes, sir. है ना? अपन को यही डिस्टेंस निकालनी है कि अगर इसको 2 मीटर की ऊंचाई से, यानी कि 2 मीटर ऑन द इंक्लाइंड प्लेन से अगर इसको छोड़ा जाए तो ये स्प्रिंग को कितना दबाएगी, ये पता करना है अपने को. ठीक है? सो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट. सबसे पहले तो इसके ऊपर सारी फोर्सेस बनाते हैं. 300 न्यूटन पे इनिशियली एक नीचे को फोर्स लग रही है. आई विल कॉल इट एज mg साइन 50 डिग्री. थीटा पता है ना मेरे को? नीचे को कितनी लग रही होगी जरा बता दो. एनीबॉडी? mg cos 50. ऊपर को फ्लोर एक रिएक्शन भी देगा. पीछे को क्या लग रही है? Friction. कितना है वो? Mu r. µr. और कोई फोर्स है क्या इस पे? हो गई सारी फोर्सेस. भाई mg इस पे नीचे को लग रही थी, उसके दो कंपोनेंट हैं ये, mg sin 50 और mg cos 50. तो अब ये mg नहीं लेंगे अपन. ठीक है? और कोई फोर्स दिख रही है इसमें? और तो नहीं है अभी, इनिशियली तो नहीं है. नो सर. No, ठीक sir. है? अब अपन को क्या करना है? सारी फोर्सेस का वर्क डन कैलकुलेट करना है. कितनी डिस्टेंस के लिए? ये यहां से लेकर के इसकी फर्स्ट पोजीशन तो हो गई, ये इनिशियल पोजीशन 1, और इसकी फाइनल पोजीशन जो है वो ये है सेकंड पोजीशन, फाइनल पोजीशन नंबर 2. यानी कि स्प्रिंग को दबा करके एक्स डिस्टेंस तक दबाकर जब ये ब्लॉक रुक जाएगा तब इसकी फाइनल पोजीशन ली है, और इसको छोड़ा भी रेस्ट से गया. ठीक है? तो इनिशियल पोजीशन पे ये खड़ा था, वहां से आपने इसको सिर्फ हाथ हटा करके छोड़ दिया है. सो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और फाइनल वेलोसिटी भी 0 है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज अ स्पेशल केस जिसमें कि ना तो इनिशियली कोई वेलोसिटी थी और रुकने के बाद पोजीशन नंबर 2 पे भी कोई वेलोसिटी नहीं है. तो बोथ द स्टेट्स हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी. बट एनीवे, हम लोग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा रहे हैं. पोजीशन नंबर 1 से लेकर के पोजीशन नंबर 2 तक आने के दौरान इस पे जितनी भी फोर्सेस दिख रही हैं आपको, उन सारी फोर्सेस का वर्क डन निकालना है. अब सबसे पहले तो ये बताओ, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक इज डाउन द प्लेन.
विल देयर बी एनी वर्क डन बाय mg cos 50 एंड r? इन दोनों फोर्सेस के कारण कोई भी वर्क प्रोड्यूस होगा क्या? नो सर। नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन और इन दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फोर्स नेवर प्रोड्यूस वर्क. तो अब इन दोनों के कारण वर्क तो नहीं होगा. अब वर्क प्रोड्यूस करने वाले कौन कौन से फोर्सेस रह गए आपके पास? mg sin 50 and mg sin friction. 50 और म्यू आर. अब म्यू आर की वैल्यू और बता दो मेरे को कितनी है. म्यू आर कितना हो गया? आपको ये पता है कि R इज इक्वल टू mg cos 50. क्या मैं ये कह सकता हूं? यस सर। क्योंकि R और mg cos 50 के डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो इसका मतलब R और mg cos 50 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे. तो दैट मींस Yes, R sir. इक्वल टू mg cos 50. अब R की वैल्यू मिल गई तो म्यू आर कितना हो गया? म्यू आर इज इक्वल टू 0.2 इंटू mg cos Cos 50. 50. अब देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. mg sin 50 की फोर्स कितने डिस्टेंस चली? यहां से लेकर के So 2 यहां तक. meter. 2 ध्यान. plus x. So 2 plus x. 2 प्लस एक्स. तो वर्क डन बाय mg sin 50 कितना हो गया? इंटू 2 + x। Into 2 plus x. अब ये वर्क डन प्लस है कि माइनस है? प्लस है। प्लस है, क्योंकि mg sin 50 और डायरेक्शन ऑफ मोशन एक ही है. ठीक है. अब दूसरी फोर्स कौन सी है? म्यू आर है. म्यू आर पीछे को लग रही है और मोशन का डायरेक्शन आगे को है. तो इसका वर्क डन बताओ कितना है? मैं सिर्फ पहले तो फोर्स लिख देता हूँ. 0.2 इंटू mg cos 50. ये तो फोर्स हो गई. फोर्स के साथ में डिस्टेंस कितनी होगी? 2 plus x. ये भी 2 प्लस एक्स ही है. और इस पे प्लस साइन लगाऊं कि माइनस साइन लगाऊं? Minus. Sir, minus sign. और कोई फोर्स रह गई क्या ऐड करने के लिए? मैं ये कर रहा हूं समेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बिटवीन पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2. और कौन सी फोर्स रह गई बताओ? नो सर। अब देखो, Spring इसमें force. एक चीज आपको ये समझनी है. ऑब्जेक्ट यहां से लेकर के जब यहां तक आया तब तक तो सिर्फ ये दो फोर्स थी. लेकिन जैसे ही अभी पोजीशन नंबर 2 पे पहुंचा नहीं है ना, पोजीशन नंबर 2 यहां पर है. पोजीशन नंबर 2 से पहले जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाएगा तो एक नई फोर्स अपियर हो गई. और वो फोर्स कितनी है? के एक्स के बराबर है. और वो डिस्टेंस कितने तक ट्रेवल करी उस फोर्स के साथ? सिर्फ एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी. लेकिन अपन को इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है. वर्क डन बाय स्प्रिंग. क्यों? क्योंकि जैसे ही इस पॉइंट पे ब्लॉक आएगा तो स्प्रिंग इस पे उल्टा फोर्स लगाएगी के एक्स का. ठीक है भाई. अपन सारी की सारी फोर्सेस ऑन द बॉडी लगा रहे थे ना, ऑन 3000 न्यूटन ब्लॉक. तो अब आप ये नहीं कैलकुलेट करोगे कि 3000 न्यूटन ब्लॉक ने स्प्रिंग को कितने से दबाया. आपको ये चाहिए कि 3000 न्यूटन की ब्लॉक पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है. तो जैसे ही स्प्रिंग के कांटेक्ट में आई, स्प्रिंग इसको पीछे को धक्का दे रही है. तो के एक्स इज बैकवर्ड एंड विथ द एप्लीकेशन ऑफ के एक्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन द ब्लॉक नाउ मूव्स a further distance of x meters also. So the work done will be half of kx square, or rather I should say the work done by the spring on the body is half of kx square with a minus sign. आपको पहले वाली जो मैंने रिवीजन नोट्स दिए थे ये देख लो. वर्क डन बाय स्प्रिंग अगर है तो माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको. सो मैं अभी क्या कर रहा हूं, समेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ले रहा हूं. तो वापस से बता दूं, यहां से लेकर के यहां तक आने तक तो सिर्फ म्यू आर और mg sin 50 का साथ था. लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे आया, सिर्फ एक x डिस्टेंस के लिए के एक्स फोर्स का भी साथ आ गया. और के एक्स फोर्स फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग है, तो उसकी जो वर्क डन होगी माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर होगी. तो समेशन ऑफ वर्क डन में मैंने mg sin 50 का टोटल वर्क ले लिया, म्यू आर का टोटल वर्क ले लिया. अब स्प्रिंग का टोटल वर्क और लूंगा, तो क्या मैं माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर लिख दूं क्या?
Yes, sir. हो गया। अब सारे वर्क ले लिया अपन ने। नाउ देर आर नो एडिशनल सरप्राइजिंग फोर्सेस बिटवीन पोजीशन नंबर 1 एंड पोजीशन नंबर 2। यू हैव कंसिडर्ड ऑल द फोर्सेस एंड द वर्क डन बाय देम वाज एडेड अप बाय यू विद देयर प्रॉपर साइंस। स्प्रिंग फोर्स उल्टी थी तो माइनस के एक्स स्क्वायर ले लिया, फ्रिक्शन फोर्स उल्टी थी तो माइनस ले लिया, mg sin 50 सेम डायरेक्शन में था तो प्लस ले लिया। तीन वर्क थे, तीनों वर्क को ऐड कर लिया। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है? द सम ऑफ ऑल द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, इसको वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 लिख लो, मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम वी वन स्क्वायर। नाउ इफ यू रीड द प्रॉब्लम वंस अगेन, the block was released from rest and after compressing the spring to a distance of x it again comes to rest। तो आपकी v1 और v2 की वैल्यूज कितनी है? Zero. Zero. दे आर बोथ जीरो। स्टार्ट भी रेस्ट से करती है और स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद फिर रेस्ट पे आ जाती है, तो इसीलिए ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो राइट हैंड साइड जो है आपका वर्क एनर्जी इक्वेशन का वो जीरो है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई मैंने समेशन ऑफ वर्क तो यहाँ पे ये निकाल के रखा हुआ था, क्या मैं इस पूरे चीज को इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू जीरो लिख दूं? यस सर। हो गया काम खत्म। अब आपको क्या करना है? यू सॉल्व दिस इक्वेशन। mg कितना है? 3000। ठीक है, sin 50 cos 50 known है। the only thing that is unknown in this equation is x, but you see you are getting a quadratic equation of x। तो अब आपको इस इक्वेशन को प्रॉपरली एक बार सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू ऐसे निकालनी पड़ेगी, प्लस माइनस इसका क्या फॉर्मूला होता है रूट निकालने का, बताओ मुझे। बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर बी, रूट माइनस बी भी आता है ना? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। होल डिवाइडेड बाय 2a। इसमें a क्या है? जो एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट है, और b क्या है? जो सिंगल x का कंपोनेंट है, और c क्या है? जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट। ये आपको करना आना चाहिए। इसको सॉल्व करो और अब मेरे को ये बताओ, इसमें आपको अगर x की वैल्यू एक तो पॉजिटिव मिली और x की वैल्यू एक नेगेटिव मिली, तो आप इसमें नेगेटिव वैल्यू ऑफ x को इग्नोर करोगे या नहीं करोगे? देखो, ये रूट जब निकलता है ना, तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि इसमें एक साइड एक वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, और हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव आ जाए। तो दोनों पॉजिटिव आ जाएगा तो अपन को कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा, लेकिन आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल इनएडवर्टेंटली फाइंड दैट वन ऑफ द वैल्यूज और वन ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स इज नेगेटिव। सो व्हाट डू यू मेक सेंस ऑफ दैट? मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स का क्या मतलब है? उसको इग्नोर करूं कि नहीं करूं? वापस से फिगर को देखिए। एक्स का डायरेक्शन कहां पर लिया था आपने? आपने ये कहा था कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्स का कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि एक्स इस दिशा में। अब आपने अगर इक्वेशंस को बनाया, आपने सारी प्लस और माइनस इन डायरेक्शंस को देख के ही तो बनाया ना। सारी फोर्सेस को, सारे वेक्टर्स को डाउनवर्ड साइड में पॉजिटिव माना है और अपवर्ड साइड में नेगेटिव माना है। तो अगर x की वैल्यू अगर आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन के सॉल्यूशन से नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब क्या है? ये बोल रहा है कि इस पोजीशन से x कंप्रेस होने की बजाय एक्सपैंड हुआ है। दिस इज द मीनिंग ऑफ x कमिंग आउट एज नेगेटिव। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या? इज इट फिजिकली पॉसिबल कि आप किसी चीज को, स्प्रिंग को दबाने के लिए ऊपर से नीचे छोड़ रहे हो और स्प्रिंग एक्सपैंड हो जाए? नहीं हो सकता ना ऐसा। नो सर, नहीं हो सकता है सर। तो इसीलिए ये वाला जो ऑल्टरनेटिव है, कौन सा ऑल्टरनेटिव? द वन वेयर x कम्स आउट एज नेगेटिव हैज टू बी इग्नोर्ड।
और सिर्फ इस फॉर्मूले को लगा करके x की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी सिर्फ उसी को ही आपको कंसिडर करना है। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी इससे। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, ये समझ में आ गया आपको कैसे निकाला अपन ने x की वैल्यू? अपन ने सिंपली वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाया है, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे ऑब्जेक्ट गया, कंप्रेशन स्प्रिंग का स्टार्ट हुआ, स्प्रिंग की फोर्स ली, सारी फोर्सेस को कंसिडरेशन में लिया, टोटल वर्क डन बाय फोर्सेस निकाला, फिर देखा कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स दोनों में जीरो है, तो राइट हैंड साइड पूरा ही जीरो हो गया। इस इक्वेशन को चेक किया तो x में क्वाड्रेटिक निकल के आई, x के रूट्स निकाले, नेगेटिव वैल्यू ऑफ x को क्यों इग्नोर करना है वो भी समझ लिया, तो x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चेक कीजिए ये आंसर आता है कि नहीं। दिस इज योर आंसर। इन्होंने mm में दिया हुआ है, आप लोग इसको, आपका आंसर आएगा 0.721। ठीक है, आप जब रूट निकालोगे तो x की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी आपका ये आना चाहिए। दिस इज व्हाट यू शुड गेट। ये नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए, ये mm में दिया हुआ है, तो आप ये देख के मत घबरा जाना कि भाई इनका तो 721 आया है, मेरा 0.7 आया है। आपका 0.7 ही आएगा, क्योंकि आपने सारे चीज ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर रखे हैं, एंड योर यूनिट इज इन मीटर्स। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। Determine the maximum deformation of the spring and maximum velocity of the block. अब देखो ये जो पार्ट है ना, दिस इज वेरी ट्रिकी एंड इवन पीपल हु आर वेरी कन्वीनियंट विद द टॉपिक ऑफ और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स कैन गेट कंफ्यूज्ड इन दिस पार्ट। अब इसमें अगर आप कॉमन लॉजिक लगाओगे तो कॉमन लॉजिक आपको गलत फहमी का शिकार बना देगी। कैसे? आपने ये कहा कि भाई ये ब्लॉक फिसलता हुआ आ रहा है, तो जैसे जैसे ये नीचे फिसलता हुआ आ रहा है इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ये तो अपन सब मानते हैं, और आपको मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक निकालनी है। ये भाई इस पॉइंट पे जाके कहीं रुकता है, ये ब्लॉक यहां से चालू हुआ और स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद एक्स डिस्टेंस से ये यहां पर जाकर के रुकती है। तो ये पूछ रहा है कि इस पूरी जर्नी के दौरान इस ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी कहां आएगी। तो पहली नजर में ये कंफ्यूजन होता है कि भाई जैसे ही इस ब्लॉक ने इसको टच किया, इसके ऊपर तो एक एडिशनल रेजिस्टेंस पैदा हो गई ना स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग को दबाते टाइम तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ ही नहीं सकती। लगता है कि नहीं लगता ऐसा? भाई आपको मैंने कहा कि ब्लॉक को छोड़ा, स्प्रिंग पे जाके टकराया और एकदम से स्प्रिंग ने इस पे उल्टी फोर्स लगानी चालू की, और स्प्रिंग पे टकराने से पहले इस पे कोई और रेजिस्टेंस थी नहीं, सिर्फ फ्रिक्शन थी, और स्प्रिंग से टकराने के बाद स्प्रिंग और फ्रिक्शन दोनों पीछे को धक्का दे रहे हैं। तो अपना नॉर्मल लॉजिक ये कभी मानेगा ही नहीं कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी इसके बीच में कहीं आएगी। इट जनरली डिफाइज आवर लॉजिक। अपन को यही लगता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी इस पॉइंट पे आएगी, यानी कि जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द स्प्रिंग बोर्ड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विल बी अचीव्ड, बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। सरप्राइजिंगली द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक occurs somewhere आफ्टर द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग स्टार्ट्स, यानी कि स्प्रिंग का कंप्रेशन चालू होने के बाद किसी एक पॉइंट पे जाकर के मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है, और उसके बाद की जो जर्नी है उतनी सी जर्नी में जाकर के वो उस मैक्सिमम वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी तक पहुंच जाता है। तो इसकी वेलोसिटी का जो कर्व है वो कुछ ऐसा है, पहले तो यहां जा रहा था फिर एकदम से यहां जाता है नीचे। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऐसा है, सॉरी, पहले तो यहां बढ़ती भी गई फिर एकदम से यहां नीचे आ जाती है। दिस इज हाउ द वेलोसिटी ड्रॉप। और स्प्रिंग का कंप्रेशन यहां से स्टार्ट होता है, तो यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं मिली, स्प्रिंग का कंप्रेशन होने के बाद किसी एक पॉइंट पे यहां पर आकर के मैक्सिमम बनती है। तो हाउ डू यू कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी? तो जितना मैंने अभी आपको प्रेजेंट किया और जितना आपको लग रहा है उतना डिफिकल्ट नहीं है ये स्प्रिंग की मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना। नाउ व्हाट यू डू, इसका सॉल्यूशन चूंकि यहां पर मैंने लगा रखा है, इधर इधर से पढ़ना स्टार्ट करो। ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इधर जो टेक्स्ट बुक में जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है दैट शुड बी सफिशिएंट
for people of your level to understand how to calculate this particular problem. The velocity will be maximum when acceleration is 0. आप एक्सेलरेशन की बात मत करो, आप तो वेलोसिटी एज अ वेरिएबल v की बात करो. और अगर मैं सिर्फ ये पूछूं मैक्सिमाइज द वेरिएबल v, तो आपका मैथमेटिकल अप्रोच क्या रहेगा? यू इमीडिएटली डिफरेंशिएट द इक्वेशन इन विच v इज देयर एंड यू पुट द कंडीशन that the rate of change of v with respect to time when it is 0 you get the maximum velocity. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका कर्व है जो मैंने आपको बताया था. अब इसमें वेलोसिटी मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी? इस पॉइंट पे होगी. हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? इसको कैलकुलेट करने का तरीका यही तो होता है ना, dv by dt को 0 पुट करो. मानते हो कि नहीं मानते हो? मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है ना आपने, है कि नहीं? यस सर. ठीक है, तो dv by dt को 0 करने का मतलब है दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन. तो ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन जिस पॉइंट पे इसकी जर्नी में, यानी कि यहां से लेकर यहां तक के पॉइंट में जहां पर भी इसका एक्सेलरेशन 0 होगा वहीं इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी. और अब आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है कि क्या इस ऑब्जेक्ट का इस स्प्रिंग के टच होते टाइम एक्सेलरेशन 0 है क्या? नहीं है. तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 कहीं अंदर कहीं आता है. अब वो कहां पर आता है वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, अब एक्सेलरेशन अगर 0 है किसी पॉइंट पे तो फोर्स कितनी लग रही होगी इस पे? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन. ये न्यूटन का सेकंड लॉ है. तो अगर एक्सेलरेशन ही 0 हो गया तो समेशन ऑफ एफ का क्या हाल होगा ये बताओ मुझे. फिर ये भी 0 हो जाएगा. ये भी 0 हो जाएगा. सो in any problem like this all that you have to do is find a point inside this, let us say some distance x dash या s कुछ भी कर दो जिस पे कि all forces acting are 0. अब all forces कौन कौन सी है? एक तो स्प्रिंग फोर्स इसको पीछे को धक्का दे रही है kx से, एक 3000 mg sin 50 नीचे को एक्ट कर रहा है और एक फ्रिक्शन पीछे को एक्ट कर रहा है. इन सबको बराबर कर दो. ये देखो स्प्रिंग फोर्स जो कि उधर को है ऊपर को, फ्रिक्शनल फोर्स वो भी उधर को है तो माइनस में है, तो इस माइनस एफ को इधर भी लिख सकते हो आप. ये दोनों मिला के किसके बराबर हो जाएंगी? नीचे को आती हुई फोर्स जो कि W sin थीटा है. इससे आप x की वो लोकेशन निकालो जिस पे मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी एंड रीअप्लाई द वर्क एनर्जी इक्वेशन टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट दैट लोकेशन. ठीक है, इसके आगे का पार्ट एक बार आप खुद रीड करें और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो वी विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट क्लास वंस अगेन. ठीक है, सॉल्यूशन यही आपके मैंने नोट्स में ही दे रखा है एंड इन द नेक्स्ट क्लास एक बार ये कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की प्रॉब्लम भी अपन करेंगे और उसके बाद अपन मोमेंटम वाले टॉपिक पे मूव फॉरवर्ड हो जाएंगे. सो प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, और इसमें इन्होंने मैक्सिमम वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट किया है ये आपको समझना है. मैंने आपको थ्योरी बता करके छोड़ दिया है बट प्लीज रीड इट एंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट डू लेट मी नो. I will take your attendance and please don't go away right now.